start anything, any topic, any syllabus, any work, for that the basic things are very necessary, are very essential. So therefore we study different basic techniques and fundamental things in chemistry. Before discussing the basic things in chemistry, first we want to discuss the term chemistry, that what is chemistry and how we will define chemistry. So in the modern era, we said that the study of atoms and molecules is called as chemistry. For that definition, I will write these two things in which the two hydrogen atoms combine to form hydrogen molecule. These are two free atoms. These are also called as neutral atoms. Now, if we want to make the hydrogen molecule, how the hydrogen atoms combine to each other to form hydrogen molecule. Each hydrogen atom has a single electron in the valence shell. If we want to make a hydrogen molecule, the electron will be shared between two atoms, and that is a covalent bond will be formed between two hydrogen atoms and a hydrogen molecule will be formed. So we want to discuss the hydrogen atoms, and the hydrogen atoms will make a hydrogen molecule. How hydrogen molecule will form? When the hydrogen atom share the electron between each other. That is the mutual sharing of electron, and this mutual sharing of electron is actually called as covalent bond. Now, if we want to break this covalent bond, so some energy will be required, because if we want to separate the molecule from each other and we want to make neutral atoms, for making neutral atoms energy is required. So if we give energy to this molecule, the covalent bond will be broken. Again, free hydrogen atoms will be formed. In the same way, if we want to make oxygen molecule, so two oxygen atoms combine to form oxygen molecule. Or if we want to show the bond between oxygen molecule, then we can write by this way: a double covalent bond will be formed between two oxygen atoms. Both the oxygen atoms belong to group number 6, therefore each oxygen atom has 6 electrons in the valence shell. Now if we want to make an oxygen molecule, for this purpose both the oxygen atoms will combine to form oxygen molecule, and the bond which is formed between the oxygen molecule is called as double covalent bond. So in the same way, we can write other molecules to discuss their geometry, their shape, their bonds, the energy which has been absorbed, the energy which has been released. So in this concept, the bond which is formed here in oxygen molecule and here in hydrogen molecule, the bond formation is called as exothermic. So in the exothermic process, the energy will be released. When the energy is released, the molecule become more stable. If we want to discuss this hydrogen molecule, in which the hydrogen molecule has been broken and it has been converted into free hydrogen atoms, here the energy will be absorbed. This process is called as endothermic process. In the endothermic process, the molecule absorbs energy and the bond will be broken and free hydrogen atoms will be formed. So therefore, I have written that the study of atoms and molecules is called as chemistry. That is the most modern definition of chemistry. Now we will discuss some other fundamental aspects of chemistry and fundamental concepts in chemistry. Assalamu alaikum, dear students. Today we will discuss some basic concepts in chemistry. So the first thing which I want to discuss in chemistry, that is the most simple topic, which is called as matter. So anything which has mass and occupies space. Anything which has mass and occupies space is called as matter. Matter has different types, but the most two important types are in which we study matter. One is called as living matter. In living matter, plants, human beings, animals are included. जिसमें plants हैं, animals हैं और human beings हैं.
जस्ट लाइक प्लांट्स भी स्पेस ऑक्यूपाई कर सकते हैं, उनका मास है। या मैं यहाँ पर खड़ा हूँ आपके सामने, तो जहाँ पर मैं खड़ा हूँ दैट इज माई स्पेस, और मेरा एक मास भी होगा, सपोज माई मास है 65 kg, सो देयरफॉर आई एम अ लिविंग मैटर। इसी तरह हमारे पास नॉन लिविंग मैटर भी है, जिसमें हमारे पास एयर आ सकता है, इसमें हमारे पास वाटर भी आ सकता है, इसमें हमारे पास सैंड भी आ सकता है। तो देयरफॉर मैटर हैज टू टाइप्स, वन इज कॉल्ड एज लिविंग मैटर एंड द अदर इज कॉल्ड एज नॉन लिविंग मैटर। लिविंग मैटर में हमारे पास ह्यूमन बीइंग भी आ सकते हैं, इस प्लांट्स भी आ सकते हैं, एनिमल्स भी आ सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आ सकते हैं। जबकि नॉन लिविंग मैटर में हमारे पास एयर आ सकता है, वाटर आ सकता है, सैंड आ सकते हैं, और बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। अब अगर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एयर हमारे पास किस तरह एक मैटर है, तो सपोज हमारे पास ये एक वाटर का कंटेनर है, और इसमें हम एक गिलास इन्वर्टेड करके रख लेते हैं। तो आप देखेंगे कुछ पानी जो है गिलास के अंदर चला जाएगा, और आधा जो है गिलास पानी से भर जाएगा, और आधे हिस्से में हमारे पास एयर होगा। एयर का प्रेशर वाटर के ऊपर होगा, तो इसलिए वाटर ऊपर नहीं जा सकता। लेकिन जब हम इसको हम क्या करेंगे, गिलास को इस तरह कर लेंगे, तो यहाँ पर जो एयर है वो बबल्स की शक्ल में निकल जाएगा, और पूरा गिलास वाटर से भर जाएगा। So that is the space of the air which has been occupied by the air inside that glass. So from this simple experiment, we can identify that how the air can occupy the space. इसी तरह अगर हम लेते हैं, ये एक हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस है, इसके साथ में दो किस्म के बैलून अटैच करता हूँ, एक ये है और एक हमारे पास ये है। इसे हम कहते हैं इन्फ्लेटेड बैलून। दिस इज कॉल्ड एज इन्फ्लेटेड बैलून, और इसका नाम है डिफ्लेटेड बैलून। तो यहाँ पर न्यूटन में इस पे 1 2 3 4 लगा होता है। यहाँ पर भी इसका मास हम न्यूटन में मेजर करते हैं, 1 2 3 4 न्यूटन में। तो इन्फ्लेटेड बैलून जो है ये नीचे आएगा, और न्यूटन में हमारे पास इसका मास ज्यादा हो जाएगा, जबकि डिफ्लेटेड बैलून जो है उसका मास हमारे पास कम हो जाएगा। सो फ्रॉम द स्प्रिंग बैलेंस we can discuss and we can identify that how the air has a mass. Inflated balloon का मास ज्यादा होगा और deflated balloon का मास कम होगा। तो इससे पता चल जाता है कि हमारे पास एयर का मास है, एयर हमारे पास मैटर है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम एक्सप्लेन करेंगे फंडामेंटल कंसेप्ट में, फंडामेंटल बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, वो हमारे पास है एटम। हम कहते हैं कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एज एटम, और हम कहते हैं द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड एज एटम। तो हम दो तरीकों से इसको डिफाइन कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर और एलिमेंट इज कॉल्ड एज एटम। इसको समझाने के लिए सपोज मैं लेता हूं आयरन, जिसका सिंबल है Fe। सपोज हम लेते हैं एक आयरन रॉड। आयरन रॉड मैंने लिया है और इसको हम स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसके स्मॉल पीसेस बनाना चाहते हैं। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि मजीद डिवाइड नहीं होगा, सिंप्लीफाई नहीं होगा, मजीद जो है डिवाइड नहीं होगा, तो उसे हम एज्यूम कर लेते हैं कि स्मॉलेस्ट है। उसे हम सपोज कर लेते हैं कि दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द आयरन। सो फिर उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम एटम कहते हैं। और केमिस्ट्री भी हम एटॉमिक लेवल पे स्टडी करते हैं, क्योंकि एक्चुअली एटम कंबाइन होते हैं और उससे मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो जब हमें एटम के बारे में आइडिया आ जाएगा तो उसके बाद हम एटम्स कंबाइन कर सकते हैं और उसे मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट बेसिक थिंग है, बेसिक कंसेप्ट है केमिस्ट्री में, वो हमारे पास मॉलिक्यूल है। तो इसके बाद हम मॉलिक्यूल स्टडी करेंगे कि किस तरह मुख्तलिफ एटम्स, सेम एटम्स आपस में मिलते हैं मॉलिक्यूल बनाते हैं, डिफरेंट एटम्स आपस में मिलते हैं मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो उसके बाद हम मॉलिक्यूल अभी स्टार्ट कर लेते हैं। नाउ वी विल डिस्कस मॉलिक्यूल।
जब मुख्तलिफ एटम्स आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि द कम्बिनेशन ऑफ एटम्स एक्चुअली कॉल्ड मॉलिक्यूल। मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है कम्बिनेशन ऑफ एटम्स इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूल। तो इसमें मैंने न सेम लिखा है न डिफरेंट लिखा है, क्योंकि ये सेम से भी बन सकता है और डिफरेंट से भी बन सकता है। तो इसलिए मॉलिक्यूल्स के बहुत सारे टाइप्स हैं और उनको एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। कि होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल किसे कहते हैं? होमो का मतलब है सेम, और डाई का मतलब है टू, और एटॉमिक का मतलब है एटम्स। कि ऐसा मॉलिक्यूल जो दो सिमिलर एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनता है उसे हम कहते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। सपोज इफ आई राइट टू हाइड्रोजन एटम्स, so they will form a hydrogen molecule. In the same way, we can also write two oxygen atom, they will form oxygen molecule. इसी तरह नाइट्रोजन के दो एटम अगर आपस में मिलेंगे तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बनाएंगे। एक और एग्जांपल में दो क्लोरीन एटम्स आपस में मिलेंगे और क्लोरीन का मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो इन तमाम केसेस में अगर हम देखें तो सिमिलर एटम्स हैं दोनों हाइड्रोजन, उन्होंने एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाया है। यहाँ पर दो नाइट्रोजन है आपस में सेम है, इसी तरह दो क्लोरीन है वो भी सेम है, इसी तरह दो ऑक्सीजन है वो भी सेम है। तो ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना है, यहाँ पर क्लोरीन का मॉलिक्यूल बना है, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है और ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है। तो सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। Homo means same, di means two, atomic means molecule. Those molecules which are formed by the combination of two similar atoms are called as homoatomic molecule. तो ये चार जो हमने लिखे हैं इसे हम कहते हैं homoatomic molecule। जो टॉपिक है मॉलिक्यूल के अंदर, तो मॉलिक्यूल के हम डिफरेंट टाइप्स पढ़ते हैं। एक टाइप हमने डिस्कस कर लिया, दूसरा हमारे पास जो टाइप है उसे कहते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मानो केमिस्ट्री में वन के लिए इस्तेमाल होता है। अब हमारे जहन में एक बात आती है कि मॉलिक्यूल तो दो या दो से ज्यादा एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, तो एक एटम से किस तरह मॉलिक्यूल बन सकता है? तो मॉलिक्यूल वो स्पीशीज, उन स्पीशीज को कहते हैं जिसमें इनका आखिरी शेल कंप्लीट होता है। तो अगर हम देखें ग्रुप नंबर 8 के एलिमेंट्स को देखें, उसमें हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनान है, रेडन चूंकि रेडियो एक्टिव है तो इसलिए वो हम नहीं लिख सकते। तो इसमें अगर हम देखें तो इनका आखिरी शेल 8 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट है एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा 1:2 लिखूंगा। नियान का एटॉमिक नंबर है 10, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, तो ये होगा 1:2, 2:2 और 2p6। ये इसका आखिरी शेल है, ये इसका पहला शेल है। इसको हम K से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप देखें तो नियान में आखिरी शेल कंप्लीट है बाय 8 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसी तमाम स्पीशीज जिनमें ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, उनका आखिरी शेल 8 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट हो जाता है, उनको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। और ये सिंगल एटम से बने हैं। हीलियम एक सिंगल एटम है, नियान एक सिंगल एटम है। तो ऐसी तमाम स्पीशीज जो सिंगल एटम पे मुश्तमिल हो लेकिन उनका आखिरी शेल कंप्लीट होगा तो उनको हम कहते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। सो सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। और ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल पीरियोडिक टेबल में सिर्फ और सिर्फ ग्रुप नंबर 8 में शामिल हैं। स्टार्ट नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल हम पढ़ेंगे। दो टाइप्स हम पढ़ चुके हैं, एक है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल और एक है होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब नेक्स्ट जो टाइप है मॉलिक्यूल का वो हम पढ़ेंगे कि उसका नाम जो है होमो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल का नाम है होमो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। जिस तरह मैंने पहले मेंशन किया है कि होमो जो है वो सेम के लिए इस्तेमाल होता है, पॉली यहाँ पर मोर देन 2 के लिए इस्तेमाल होगा।
दो से ज्यादा एटम्स आपस में कंबाइन होंगे, सेम होंगे, एक काइंड के होंगे, सेम काइंड के होंगे, सिमिलर होंगे, आइडेंटिकल होंगे, उनको हम कहते हैं होमो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। इसमें मैं लिखता हूँ O3, दूसरा मैं लिखता हूँ E4, तीसरा मैं लिखता हूँ S8। तो इसमें हमारे पास 3 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। यहाँ पर फास्फोरस के एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए P4 हम लिखते हैं, उसमें 4 फास्फोरस के एटम्स हैं। यहाँ पर सल्फर में 8 हैं। तो ये जो है 3 मॉलिक्यूल जो मैंने लिख दिए, इनको हम कहते हैं होमो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अगर इसका स्ट्रक्चर हम ड्रा करते हैं तो ओजोन जो है ट्राइगोनल शेप में एग्जिस्ट करता है। अगर आप फास्फोरस का ड्रा करना चाहते हैं तो एक फास्फोरस 3 फास्फोरस एटम्स के साथ अटैच है, टेट्राहेड्रल शेप में एग्जिस्ट करता है। सल्फर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सल्फर इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसे कहते हैं रिंग्स ऑफ सल्फर। ये रिंग की शक्ल में है। फास्फोरस को आप देखें वो टेट्राहेड्रल शेप में अवेलेबल होगा और ओजोन जो है ट्राइगोनल शेप में अवेलेबल होगा। दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ होमो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। इसे पॉली होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल भी कहते हैं और होमो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल भी कहते हैं। नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूल का टाइप, 3 टाइप्स हम पढ़ चुके हैं, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब मैं लिखता हूँ हेटेरो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। हेटेरो यहाँ पर केमिस्ट्री में जहां पर भी होमो इस्तेमाल होगा, होमो का मतलब है सेम, और हेटेरो जहां पर इस्तेमाल हुआ है तो हेटेरो का मतलब है डिफरेंट। तो यहाँ पर डिफरेंट एटम्स कंबाइन हो जाएंगे और एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। डाई का मतलब यहाँ पर 2 है और एटॉमिक का मतलब है एटम्स। तो ऐसे तमाम मॉलिक्यूल जो 2 डिफरेंट एटम से बने हैं, 2 डिसिमिलर एटम से बने हैं, 2 डिफरेंट एटम्स के कॉम्बिनेशन से जो बनेगा उसे हम कहेंगे हेटेरो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। इफ आई राइट कार्बन डाइऑक्साइड, इन द सेम वे आई कैन राइट वाटर। तो आप देखिए यहाँ पर 2 डिफरेंट एटम्स हैं, वन इज कार्बन, द अदर इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन। सो कार्बन डाइऑक्साइड को हम कहते हैं हेटेरो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। इसी तरह वाटर में 2 डिफरेंट एटम्स हैं, एक है हाइड्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन, तो इसको भी हम कहते हैं हेटेरो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा कर देंगे तो ये कार्बन होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है। कार्बन के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 इस ऑक्सीजन के साथ शेयर करता है, 2 इस ऑक्सीजन के साथ शेयर करता है, एक लीनियर मॉलिक्यूल बन जाता है, लीनियर शेप इसका होगा। अगर वाटर का हम स्ट्रक्चर ड्रा करना चाहते हैं तो ये बेंड शेप में आएगा, ये इसी तरह होगा। ऑक्सीजन बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 6, तो ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, तो इनको हम कहते हैं हेटेरो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। दूसरे एग्जांपल भी हमारे पास हैं, जैसे लाइक मैं लिखता हूँ CH4 मीथेन। मीथेन में आप देखें 2 किस्म के एटम हैं, एक है कार्बन, दूसरा है हाइड्रोजन, दोनों डिफरेंट हैं, दोनों डिसिमिलर हैं, तो इसीलिए मीथेन को भी हम कहते हैं हेटेरो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। इसी तरह हम सल्फर डाइऑक्साइड को लिख सकते हैं। सल्फर भी 2 डिफरेंट एटम से, सल्फर डाइऑक्साइड भी 2 डिफरेंट टाइप्स के एटम से बना है, एक हमारे पास सल्फर है और एक ऑक्सीजन है। तो सच टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट एटम्स, दे आर कॉल्ड एज हेटेरो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। नेक्स्ट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो आज हम पढ़ेंगे कि इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है और इसको ये मॉलिक्यूल का नाम किस बेस पे दिया गया है। तो इसे मैं लिखता हूँ हेटेरो इसे कहते हैं हेटेरो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। जिस तरह मैंने इससे पहले आपको बताया है कि हेटेरो का मतलब है डिफरेंट और पॉली का मतलब है मोर देन 2। तो सच मॉलिक्यूल व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 2 डिफरेंट एटम्स, दे आर कॉल्ड एज हेटेरो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इसको समझाने के लिए मैं लिखता हूँ H2SO4। इसे कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज किंग ऑफ ऑल केमिकल्स। तो इसमें 3 डिफरेंट एटम्स हैं, एक हाइड्रोजन है, एक सल्फर है, एक ऑक्सीजन है। तो इस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं हेटेरो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल।
In the same way, if I write the formula of glucose, which is C6H12O6, so इस ग्लूकोज में आप देखें 3 डिफरेंट टाइप्स के एटम्स मौजूद हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो ये भी इस कैटेगरी में आएगा जिसे हम कहते हैं हेटेरोपॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर हम नाइट्रिक एसिड का फार्मूला लिखते हैं तो नाइट्रिक एसिड का फार्मूला है HNO3, तो इसमें भी 3 डिफरेंट किस्म के एटम्स हैं, इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, सो ये भी इसी कैटेगरी में आएगा। इसी तरह अगर हम सक्रोज लिखते हैं उसका फार्मूला C12 है H22O11, तो ये भी इसी कैटेगरी में आएगा जिसे हम कहते हैं हेटेरोपॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। सो सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स, 2 से ज्यादा एटम्स पे मुश्तमिल होगा, उन मॉलिक्यूल्स को हम कहेंगे हेटेरोपॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। बहुत सारे एग्जांपल हैं, ये चंद मशहूर एग्जांपल हैं जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रिक एसिड, इन द फॉर्म ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इन द फॉर्म ऑफ सक्रोज, जिसे हम आम जुबान में शुगर भी कहते हैं, टेबल शुगर भी कहते हैं, तो इनको हम कहते हैं हेटेरोपॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। दैट वाज द कॉम्बिनेशन, दैट वाज द क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल। यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की क्लासिफिकेशन खत्म हो गई और तमाम टाइप्स हमने एक्सप्लेन कर दिए, तो यकीनन आपको इसकी समझ आई होगी। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा, आप इस वीडियो पे कमेंट्स दे सकते हैं और इसको सब्सक्राइब भी कर लें, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है।